today let's start with chapter number 2, sorting material into groups. So let's start with the chapter now. We will classify different objects. So the importance of classification. So why we classify different objects? अगर हम classify नहीं करेंगे तो सारे object हमारे एक जैसे हो जाएंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ग्रुपिंग थिंग्स मेक इट इजी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, हम उनको इजीली लोकेट कर सकते हैं. इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस टू लर्न एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज. इट मेक्स वर्क ईजियर एंड वेस्टेज ऑफ टाइम इज अवॉइडेड. इट हेल्प्स टू सेग्रीगेट सिमिलर ऑब्जेक्ट. सिमिलर ऑब्जेक्ट हम सेग्रीगेट कर सकते हैं. व्हाट आर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ? So objects around us are made up of different kind of materials like glass, metal, plastic, wood, cotton, leather, paper, rubber. Curtains are made of clothes. A table is made of wood. Bags are made up of leather. And a pair of slippers are made up of rubber. For making a particular object, combination of several material can be required. Like अगर आपको बाइसिकल बनानी है तो आपको प्लास्टिक भी चाहिए, लेदर भी चाहिए, मेटल भी चाहिए, राइट, और रबड़ भी चाहिए. सो मेटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कैन बी यूज टू मेक द सेम ऑब्जेक्ट. हमें अदर अदर मटेरियल की नीड पड़ी एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की, राइट. सो नेक्स्ट इज मैटर. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर. So all solid, liquid and gases around us are made up of matter. Scientists believe that matter is made up of tiny particles that dumped clumped together. You cannot see this particle, but you can see the matter. A book, a car, a letter or a handset, a piece of wood, a tree. Think and add few more example of day-to-day life. We say that mass, it means matter has weight. The heavier an object, more it has mass. जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मास होगा. Like a substance is a pure kind of matter having only one kind of constant particle. Like we have water, iron, gold, copper, aluminum, oxygen. What are these? These all are substances. All substances are made up of matter, but not all forms of matter are substance. मतलब जो सारे forms of matter है वो substance नहीं है. In what category would you put them? They are not single substances, but mixture of substances. So let's study about the properties. We have transparency. जो physical property है वो क्या है? Transparency. जो allow करता है light to pass through the material. बिना scattering के, मतलब light scatter नहीं होती, बिना scatter के pass करती है. If almost all the object light can pass through an object, जिसे हम transparent कहते हैं, जिससे कुछ भी light pass नहीं होती उसको हम opaque object कहते हैं, right? So if the light can pass partially, it is called translucent. We cannot see through a translucent material. और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है translucent objects. देखो अगर ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसे ग्लास हो गया, क्रीम वाटर हो गया और एयर हो गया. ओपेक कार्डबोर्ड, मिल्क, ब्रोमाइन. ट्रांसलूसेंट फॉरेस्ट ग्लास, फॉरेस्टेड ग्लास, turbid water and dust leaded air. Next, appearance or luster. We can classify object by looking at them. If you are given a piece of silk fabric और a piece of woolen cloth, आप उसको differentiate कर सकते हो उसके appearance से, कि उसका appearance कैसा. So object can be identified. वो rough भी हो सकता है, वो smooth भी हो सकता है. The feel, appearance और consistency of an object is called texture. जैसे bark of tree हो गई, वो आपकी rough है. Petal of flowers and leaves are soft, dormant. They are made up of rough, jute and is rough. Whereas जो rubber है वो dormant है और smooth है, right? Then we talk about hardness. So you find many types of object around. You have touched them also. Are they all same? भाई आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे हैं. भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे सॉफ्ट है सारे हार्ड है, अलग अलग आपको देखने को मिले, राइट. So some material like iron, rock and wood, they are hard to touch and they cannot be compressed. आप उनको compress नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा hard होता है touch करने में, right. Some material like sponge or cotton, they are soft to touch और compressible. आप उसको easily compress कर सकते. Then we have solubility in water. This is also distinguished property. इसमें क्या होता है, इसमें कैपेसिटी होती है मेटल की, वो दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. सो शुगर डिसॉल्व इन वाटर. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ द सब्सटेंस व्हाट हैपन डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस. और डिसॉल्विंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. डिसॉल्विंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है. इफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व, सब्सटेंस इज सॉल्युबल. और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मेजर करती है कि कितनी इजली जो सब्सटेंस है
वो क्या हो सकता है, घुल सकता है. सो वी कैन से दैट वी हैव लिक्विड्स लाइक अल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, मिल्क जो डिजोल्व होते हैं व्हेन मिक्स विद वाटर, उनको हम मिक्सेबल लिक्विड कहते हैं. देन वी हैव केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. आपने देखा होगा कब जब भी हम ऑयल पानी में गिर जाता है तो वो घुलता नहीं है, वो इनसॉल्युबल होता है, वो आपको तैरता हुआ दिखाई देता है. जैसे आपकी अमोनिया हो गई, इट्स अ गैस दैट इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर. नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, ये क्या होता है, ये भी इनसॉल्युबल होते हैं. सो this is an activity given to you. You can read it and you can also do it at your home. Like you will take a small quantity of milk, vinegar, and then alcohol, kerosene or a coconut oil, and in the glass tumbler, और आप उसको स्टिल करो. राइट, ऐसे करके आपको देखना है क्या कॉन्फ्यूजन होगा कि जब आप मिक्स करोगे जो घी है, केरोसिन है, वो मिक्स नहीं होंगे. जो मिल्क है, विनेगर है, अल्कोहल है, वो मिक्स हो जाएंगे. देन वी हैव डेंसिटी, फ्लोटिंग या सिंकिंग, कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक कर जाएगा. So density is defined as mass contained in a unit volume of substance. कितना mass है unit volume of substance. So let's understand the piece of wood जो होगी, आपने देखा होगा वो भारी होती है तो वाटर में हमेशा फ्लोट करेगी. if we talk about a stone, जैसे आप उसको डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा. Right? Next is conduction of heat. कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मींस ऑफ मॉलिक्यूलर एजिटेशन विद इन अ मटेरियल विदाउट एनी मोशन. भाई जो मटेरियल है उसका किसी भी तरीके का मोशन नहीं होगा. राइट, सो द एनर्जी विल बी ट्रांसफर डाउन एंड रोड टुवर्ड अ कोल्डर एयर. क्योंकि क्या होगा, जो हायर स्पीड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे विद द स्लोअर वन. राइट, और जो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो स्लो होगा. अब कुछ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम इन विच हीट फ्लोज क्विकली, उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. और वुड हो जो ऐसे हो गई, वो उसमें हीट जो है वो स्लोली फ्लो करती है, वो बैक कंडक्टर ऑफ हीट हो गया. राइट, देन लेट्स स्टडी अबाउट फिजिकल स्टेट. सो द स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो हेल्प. जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट. सो एन ऑब्जेक्ट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन नेचर. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन शेप नहीं होती है. जो गैसेस होते हैं उनकी डिस्टिंक्ट शेप होती है, नॉट वॉल्यूम. नेक्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. अगर हम सॉलिड की बात करें, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है उसमें बहुत कम होती है. राइट, सो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है. गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वीक होती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So this is also an activity given to you. So you will classify the following object कि वो solid है, liquid है और gas है. So we have completed this chapter. Now we will start with exercise of this chapter. Now let's start with multiple choice question. Which of the following has luster? Shine जिसमें होती है वो है आपका gold. Coconut oil, जो coconut oil है and water. What are they? They are immiscible. देन मॉलिक्यूल्स जो आपके सॉलिड्स के होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. राइट, नेक्स्ट इज मटेरियल विच थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, दैट इज ट्रांसपेरेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसको आप घोल नहीं सकते, दैट इज सेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द fill in the blanks. First is the process of grouping object based on some criteria. What we call it? We call it classification. Now all materials are made up of matter. A feel appearance consistency of an object is, जो फील होता है, अपीयरेंस होता है और आपका कंसिस्टेंसी होता है ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचर. नेक्स्ट इज द मटेरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज सॉलिड. तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. दैट इज डिफाइंड एज द मास कंटेन इन यूनिट वॉल्यूम
ऑफ सब्सटेंस दैट इज डेंसिटी, उसको हम क्या कहते हैं? Now write T for true and F for false. Notebook has luster while eraser does not. False. Stone is transparent while glass is object. Opaque. False. A piece of wood floats on water. It's true. Oil mixes with water. False. Vinegar dissolve in water. It's true. जो vinegar होता है वो किससे जिसमें dissolve होता है? आपका what? Then we have match. Belt, leather, bucket, plastic, stapler, metal, magazine, paper or door, wood. Right? So let's study about the subjective question. First is you have to define classification and why it is important. Then you have to difference between opaque, transparent and translucent. Give some example of object that float, जो float करते हैं, sink करते हैं water में. What is luster? Luster क्या होता है? What do you mean by shorting? Shorting क्या होता है ये बताना. Long answer, explain the property of transparency. आपको transparency की property बतानी है with example. Define density and how it is related to floating and sinking. कैसे वो relate करती है? Differentiate between miscible liquid and immiscible liquid. दोनों के बारे में बताना है. फिर आपको conduction of heat, जो मैंने आपको बताया था, what is conduction of heat. Give 3 main properties of each matter. आपको properties लिखनी है solid के, liquid की and gas की. Then define the solubility. Solid के, liquid के, gas की. आपको फिर solubility के बारे में बताना. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we'll meet in next class. Thank you.